أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو،
خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، کس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہوں آج کی اس روحانی نشست کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا تعلق رمضان المبارک میں ایک سلسلہ فیضان بسم اللہ سے شروع ہوا، جو کہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ عز و جل کہ ہم اس سلسلے میں ماشاءاللہ سے خوبصورت اعمال جو کرنے میں انتہائی آسان ہیں وہ آپ کو تعلیم کر رہے ہیں، جن میں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، اور کچھ اعمال ایسے میں نے بیان کیے ہیں جو کہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہیں، جو کہ صرف عاملین کے لیے میں نے بیان کیے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسے عامل سے روحانی طور پر ٹچ ہیں تو آپ اس سے منسلک ہو کر اس طرح کے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں بسم اللہ شریف سے مقہوری دشمن کے اعمال، بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ دیکھیں، بسم اللہ شریف پر ہم نے بڑی طویل گفتگو کی، بسم اللہ شریف کے اوپر ہم نے بڑی طویل گفتگو کی، اور بسم اللہ کی ہم نے استعمالات اور بسم اللہ کے فوائد اور بسم اللہ کو استعمال کرنے کے طریقہ کار اور بسم اللہ سے کام لینے کے طریقہ کار میں نے آپ کو سب چیزیں بتائی۔ میں نے آپ کو بسم اللہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اور کچھ چیزیں میں اب آپ کو جو ہے نا وہ سلسلہ سوالات کے جوابات میں کچھ چیزیں اور بھی کلیئر کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی گفتگو میں ہم جو مقہوری دشمن کے اعمال بسم اللہ شریف کے ساتھ یا بسم اللہ شریف کے ساتھ مقہوری دشمن کے اعمال، اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی ظالم ہے اور وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ
को नाहक तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके ऊपर झूठे मुकदमात कर रहा है, आपको तंग व परेशान कर रहा है। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो अपने हिस्से की सज़ा ख़ुद मुतय्यन करते हैं, और वो अपने हिस्से की सज़ा जब ख़ुद मुतय्यन करते हैं तो फिर बिलाशुबा उनके हिस्से में वो सज़ा आती है और वो सज़ा उनको मिलती है। हमें हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से अमल करना चाहिए कि अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही मिन लिसान ज़ुबान व यदिही, कि बेहतरीन है वो मुसलमान जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बेहतरीन है वो मुसलमान जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हम मुसलमानों से महफूज यानी ज़ुबान से और हाथ से मुराद क्या है, यानी यहाँ पे ज़ुबान के शर को लिया गया और हाथ के शर को लिया गया, यानी हम अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं तो फिर हम एक मुकम्मल और बेहतरीन मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। हमें किसी को भी ऐसे नाहक नहीं परेशान करना चाहिए, और अगर कोई शख्स हमें तंग और परेशान कर रहा है तो फिर आप सब्र करें, अल्लाह आपको इस पर अजर देगा। अल्लाह उसका हशर यजीद मलून के साथ करेगा और यजीद के साथियों के साथ करेगा, और आपका जो सब्र करने के नतीजे में अल्लाह आपको शुहदाए हुसैन सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा की सफ़ में खड़ा करेगा। तो ये तो एक डिफरेंस था और ये एक दीनी पहलू था कि आप सब्र कर जाएं। लेकिन अगर कोई शख्स फिर भी बाज ना आए आपकी खामोशी पर, आपके सब्र करने पर, और पै दर पै यके बाद दीगरे आपको तंग और परेशान करता रहे, तो आपको चाहिए कि लाजमी तौर पर आप ऐसे आमाल करें, ऐसे आमाल लाजमी तौर पर करें कि जिन आमाल से आपके उस दुश्मन के शर से आपको हिफाजत मिल सके, आप अपने उस दुश्मन के शर से महफूज हो सकें। तो आपको ऐसे आमाल लाजमी तौर पर करने चाहिए, क्योंकि कुरान ने बाकायदा हदीस रसूल में जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो आपने मट्टी ली और उसके ऊपर कुरान पढ़ा, और आपने वो मट्टी अपने चारों तरफ फेंक दी जिससे कि वो काफिर अंधे हो गए, और सूरह यासीन शरीफ की वो आयत व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनहुम वाली के हमने उनके आगे और पीछे दीवारें डाल दी तो वो सो अंधे हो गए, वो कुछ नहीं देखते। तो हुजूर ने वो आयत पढ़ी और आप वहाँ से हिजरत वाली रात को हुजूर वहाँ से अपने बिस्तर पर जनाब अली मुर्तज़ा जनाब अली अलैहिस्सलाम को वहाँ सुलाकर वहाँ से चले गए, और कुफारीन के सख्त पहरे में हुजूर वहाँ से निकले। अल्लाह ने आपको कुरान के इज़्न से, अल्लाह ने अपनी रहमत से आपकी हिफाजत फरमाई। तो दुश्मनों से महफूज रहने के लिए मुज़ी चीज़ों से, ज़रर पहुँचाने वाली चीज़ों से हमें लाजमी तौर पर बचने के लिए वज़ाइफ करने चाहिए। और बाकायदा तौर पर हदीस रसूल है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ता है तो आसमान पर एक फ़रिश्ता आता है और वो बुलंद आवाज़ से कहता है कि जा, अब तेरी किफ़ायत की गई और तेरे बहुत सारे कामों से तेरी रहनुमाई की गई और तू किफ़ायत किया गया, यानी तेरी निगहबानी की गई। और फिर एक शैतान दूसरे शयातीन से कहता है कि तुम अब इस पर क्यों कर मुसल्लत हो सकते हो, जबकि उसकी तो रहनुमाई भी की गई और उसकी किफ़ायत भी की गई। सिर्फ एक बार पढ़ने से बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ आप इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको इस वजीफ़े की बरकतें हासिल होंगी, आपको इस वजीफ़े की रहमतें हासिल होंगी, आपको इस वजीफ़े के फैज़, रूहानी फैज़ आपको इसका हासिल होगा। और आपको ये जानकर हैरत होगी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप सिर्फ एक बार पढ़ने से इतना अजर व सवाब और इतनी दराजात की बुलंदी और इतनी हिफाजत और किफ़ायत के निज़ाम इससे बढ़कर हमें और कौन सा रूहानी हथियार पढ़ना चाहिए। बिलाशुबा इस्लाम में, हमारे कुरान में और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं, लेकिन इस वजीफ़े के मुकाबले का कोई वजीफ़ा हो ही नहीं सकता।
تو آپ یہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی ایک حفاظتی دعا ہے۔ اور ویسے بھی جو شر ہے وہ شیاطین سے ہے، اور جب کوئی شخص بسم اللہ شریف کو پڑھتا ہے تو وہ شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ تمام قسم کے اعمال شر سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پر اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتاریں۔ صرف ایک آیت کا وظیفہ ہے، ایک آیت کا وظیفہ ہے، صرف ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ماں سوائے ایک سورہ توبہ کے باقی ہر سورہ کے شروع میں قرآن کے یا صورتوں کو ایک درمیان منفردیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو اتارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جاتا ہے تاکہ ایک آیت دوسری آیت سے منفرد رہے یا الگ الگ رہے۔ اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مقہوری دشمن کے اعمال کیسے کیے جائیں بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ تو اس میں شرعاً کوئی منع نہیں ہے کہ آپ ظالم کی سرکوبی کے لیے آپ قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تیرے رب نے کفار کی جڑ کاٹ دی، جو ظالم تھے ان کی اللہ نے، ظالم اور کفارین کی اللہ نے جڑ کاٹ دی، اور حمد ہے اس کی کہ جو رب عالمین کا رب ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، اور اس جنگ میں جانے سے پہلے کفارین پر آپ نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ان کے اوپر کچھ پڑھا، اور پڑھ کے کفارین کی طرف وہ پھینک دی اور کفارین پر لعنت فرمائی۔ تو قرآن نے اس ادا کو یوں بیان کیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یہ جو پتھر مارے یہ آپ نے نہیں، یہ کنکریاں ہم نے، اللہ نے پھینکی۔ تو یہ باقاعدہ طور پر دشمن کے اعمال کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے حفاظتی ہتھیار کے طور پر قرآنی وظائف کو نہ صرف پڑھنا حلال ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ آپ دشمنوں کے لیے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے حفاظتی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی مقہوری کے لیے، ان کے غرق ہونے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقہوری یہ دشمن کے اعمال کہلائیں گے۔ یہ اعمال شرم ہوتے ہیں، یہ وظائف شرم میں آتے ہیں۔ تو ہمیں لازمی طور پر اس طرح کے وظائف کو کرنے سے پہلے لازمی طور پر استخارہ کرنا چاہیے، لازمی طور پر استخارہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یکے بعد دیگرے دھڑا دھڑ وظائف کیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دھڑا دھڑ وظائف کیے۔ اچھا، جب انہوں نے دھڑا دھڑ وظائف کیے کسی بھی شخص کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی استخارہ نہیں کیا، کوئی قرآن سے اللہ سے مشورہ نہیں کیا، اور بغیر ہی کسی استخارے کے انہوں نے، مشورے سے مراد استخارہ ہے، استخارے کی دعا نہیں پڑھی، اور یا استخارہ نہیں کیا پراپر، یا وہ دعا پڑھ کے اعمال نہیں کیے، تو وہ اس طرح کے اعمال شر کرنے کی وجہ سے گہری رجت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ رجت یا رجت ایک ایسی چیز ہے کہ پھر یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، کہ اس اعمال کے، ان قرآنی اعمال کے جو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، جو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے پڑھنے والے شخص پر ہی مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے وظائف کرنے سے پہلے ہمیں لازمی طور پر ایک تو استخارے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور دوسرا اول آخر استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور اپنا خود کا باطنی، اپنے اہل و عیال کا حصار کرنا چاہیے، اور صدقہ دے کر اس طرح کے اعمال اگر ضروری ہوں، اگر یہ کنڈیشن ہے، اگر ضروری ہوں تو پھر آپ اس طرح کے اعمال کریں، ادروائز آپ اس طرح کے اعمال نہ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اعمال شر کو کرنے سے پہلے ایک کسی بھی بری ساعت کا انتخاب کرنا ہے، کسی بھی بری ساعت کا انتخاب کرنا ہے۔ علم الساعات میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ساعتوں کے مختلف اثرات ہیں، ساعتوں کے مختلف اثرات ہیں، ساعتوں کے مختلف درجات ہیں، ساعتوں کی مختلف فریکوینسی ہے۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں وہ ساعت بدلتی رہتی ہے، وہ ساعت بدلتی رہتی ہے، اور اگر اس ساعت میں آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرمایا بارش کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، سفر میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے، بیمار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، شہید کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، بیوہ اور مسکین اور یتیم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔
تو اس طرح کے کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں اور کچھ اسپیسیفک ٹائمز ہیں، کچھ موومنٹ، کچھ ٹائم کی فریکوینسی ہے جو کہ اسی ٹائم میں ہی ہے، کسی اور ٹائم میں نہیں ہے۔ پھر ان کو ساعتیں کہتے ہیں۔ مختلف اعمال کی مختلف ساعتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اعمال خیر جو ہیں، مثال کے طور پر آپ لکھنے پڑھنے سے کوئی نقش بنانا چاہتے ہیں، کوئی عملی معاہدے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ورگو عطارد کی ساعت میں کریں، بدھ کی ساعت میں کریں۔ تو پھر اسی طریقے سے اگر آپ کوئی حب کا عمل تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ زہرہ اور شمس کی ساعت میں کریں۔ اس طریقے سے آپ کسی مقابلے میں کامیابی چاہتے ہیں تو سنڈے شمس کی ساعت میں آپ کریں۔ رزق، مال و دولت کی وسعت کے لیے نقش لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مشتری کی ساعت میں کریں۔ اسی طریقے سے مختلف ساعتوں سے ریلیٹڈ مختلف امور ہیں، مختلف ساعتوں سے منسوب مختلف کام ہیں، مختلف کاموں کی درجہ بندی ہے، مختلف کاموں کی درجہ بندی ہے، مختلف کاموں کے ساتھ مختلف امور طے کیے جاتے ہیں مختلف ساعتوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم نے وہ ساعتیں ڈھونڈنی ہیں جو کہ مقہوری دشمن کے لیے بہترین چیزیں ہیں، اور یہ اعمال کی تاثیر انہی ساعتوں میں ہی ہوتی ہے۔ اعمال کی تاثیر الفاظ میں بھی ہوتی ہے، لیکن اعمال کا تعلق اس وقت کے ساتھ بھی لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن جو راحت اور برکت ہے وہ ہفتے کے دن نہیں ہے، جو عیدین کے دن کی راحت اور برکت اور فریکوینسی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہے، جو حج کے دن کی فریکوینسی ہے وہ اسی طریقے سے عام دنوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہر دن کی ایک فریکوینسی ہے، ہر دن کی ایک پاور ہے، ہر دن کی ایک انرجی ہے۔ تو ہمیں برے دن کی انرجی چاہیے، اور ہم نے سب سے پہلے وہ برا دن تلاش کرنا ہے جس میں منفی قوتیں خود بخود ایکٹیو ہوں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قمر در عقرب کو دیکھ لیں۔ قمر در عقرب، قمر در عقرب جو ہے ہر مہینے میں قمر کے منازل طے کرتا ہوا جب عقرب میں داخل ہوتا ہے تو یہ نحس وقت کہلاتا ہے، اور عاملین کاملین اس کو نحس وقت بولتے ہیں، اس کو قمر در عقرب بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ قمر اب عقرب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 دن وہاں رہتا ہے، 2 دن بھی رہتا ہے، 4 دن بھی رہتا ہے۔ تو جب تک یہ ساعتیں ہوں، یہ نظریات ہوں، تو اس ٹائم میں معصوم کا فرمان ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ اس ٹائم میں کوئی بھی کام نیا شروع نہ کریں۔ تو ہم نے قمر در عقرب کی ساعت کو ڈھونڈنا ہے۔ قمر در عقرب کی جو ساعتیں ہیں وہ ہمارے لیے کارآمد ہیں، کیونکہ وہ نحس ساعتیں شمار ہوتی ہیں، منفی قوتوں کی ساعتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اور اگر قمر در عقرب میں مریخ کی ساعت، مریخ منگل کا دن ہو اور ہفتے کا دن ہو، اور زوال آفتاب ہو، زوال قمر ہو، یعنی چاند اپنی آخری دنوں میں ہو، اماوس کے قریب ہو تو بیسٹ ہے، اور ہفتے کا دن ہو اور منگل کا دن ہو، یعنی زحل اور مریخ کی ساعتیں ہوں، ہر ساعت زحل کی ساعت ہفتے کے دن، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ہفتے کی ساعت زحل کی ساعت ہوتی ہے، اور مریخ منگل کے دن بھی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت مریخ کی ساعت ہوتی ہے۔ اور بھی ساعتیں اس کی آتی ہیں، وہ ساعت نامے سے آپ اس کو بخوبی جج کر سکتے ہیں، آپ اس کو بخوبی چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اماوس کی رات کو کر لیں، قمر در عقرب میں کر لیں، مریخ کی ساعت میں کر لیں، زحل کی ساعتوں میں کر لیں، یا کسی بھی سیارے کے نحس کنڈیشن میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کوئی سیارہ حبوط میں ہو، کوئی سیارہ نحس حالت میں ہو، تو یا 2 مخالف سیارے آپس میں مل رہے ہوں تو اس وقت بھی ایک خاص قسم کے نظریات بنتے ہیں۔ ان نظریات کے اندر بھی آپ اس طرح کے وظائف اور اعمال شر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو اب وقت کی بات پتہ چل گئی، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کسی ویران جگہ پہ کرنا ہے، گھر میں نہیں کرنا، گھر سے باہر کسی ویران جگہ پر کرنا ہے۔ اور اگر آپ ہفتے کے دن کریں تو آپ کا مسلح کالا ہونا چاہیے، اور اگر آپ منگل کے دن کریں تو آپ کا سرخ رنگ کا مسلح ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اب تو ایک تو یہ چیز، پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے، گوشت کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے کوئی ایک مرغی لینی ہے، اس کو حلال کرنا ہے اور اس کا گوشت بنا کر کسی بھی غریب مستحق کو دے دیں یا کہیں بھی رکھ دیں تو تاکہ جانور اس کو کھا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دیں، بیوہ کو، مسکین کو، یتیم کو دے دیں۔ سید کے سوا صدقہ آپ ہر شخص کو دے سکتے ہیں، سادات کے سوا صدقہ جو غریب لوگ ہیں، مستحقین ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ دینے کے بعد وقت کا تعین کرنا ہے، اور وقت کا تعین کرنے کے بعد آپ نے غیب الرجال کو پشت پہ رکھنا ہے۔
गैब और रिजाल क्या हैं और उनकी सिमतें क्या होती हैं, ये आपको नेट से, सोशल मीडिया से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको वो पूरा टेबल मिल जाएगा। कमरी एतबार से आपने कमर दर अकरब गैब और रिजाल या रिजाल और गैब को सलाम करना है। झुक कर सलाम करके आपने उनकी तरफ पुश्त कर लेनी है। पुश्त करके आपने सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल सलातो तौबा पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफल सलातो तौबा पढ़नी है। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़नी है। सलातुल हाजत में आपने कहना है 2 रकात नमाज नफल मकहूरी दुश्मनान आपने नमाज पढ़नी है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 11 बार सूरह अलम तरा कैफा को पढ़ना है। इसी तरीके से दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद आपने सूरह लहब को 11 बार पढ़ना है। सलाम फेरना है और सलाम फेरने के बाद आपने आयातल कुर्सी और चारों कुल को पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम करना है और साथ में 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी पढ़ लें। पढ़कर आपने अपने हाथों के ऊपर दम कर लेना है और दम करने के बाद आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर जहाँ तक आसानी से कपड़ों से ऊपर हाथ को फेरा जा सके आपने हाथ को फेर लेना है। हाथ को आपने कपड़ों के ऊपर से फेर लिया और हाथ को कपड़ों के ऊपर से फेरने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अब अमल की आपने तरतीब शुरू कर लेनी है। आपने बाहिनी रान के ऊपर उल्टे हाथ से, लेफ्ट हाथ से, ये आपको वीडियो में राइट नज़र आ रहा होगा और वीडियो में ये हाथ लेफ़्ट नज़र आ रहा होगा क्योंकि वीडियो इस तरीके से बनाई जा रही है। ज़ाहिर बात है वीडियो में कैमरे की वजह से ये फील होता है। तो उल्टे हाथ से आपने एक काले रंग की तस्बीह लेनी है, काले रंग की तस्बीह लेनी है, ठीक है। और आपने उसको अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है, उल्टे हाथ में, ठीक है। उल्टे हाथ में उस तस्बीह को आपने पकड़ लेना है और तस्बीह को पकड़ के आपने क्या, सबसे पहले आपने रफ़ अमल कर लेना है। क्या रफ़ अमल कर लेना है? आपने रफ़ अमल क्या करना है कि आपने दुश्मन के नाम के अदद निकाल लेने हैं ना। ये मैं बना हुआ नक्श नहीं दूंगा क्योंकि लोग इसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डिलीवर की जाती कि जो मखलूक खुदा को तंगी का बायस बने। ये भी सिर्फ़ मेरी तरफ से इस वजीफ़े की इजाज़त मखसूस लोगों को होगी जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल हैं, जिन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ को 40 दिन 90 दिन 1.25 लाख की ज़कात पूरी की है। ये वो करेंगे और फिर भी बाकायदा तौर पर इस्तिखारा की दुआ पढ़ के, सदका करके, नफल पढ़ के, हसार करके। तो आपने कागज़ कलम लेना है, उसमें सबसे पहले दुश्मन के नाम के अदद, उसकी माँ के नाम के अदद और मकसद, ज़ुबान बंदी, मकहूरी दुश्मन या कोई भी आपने जो मकसद आपका हो वो आपने लिख लेना है। मकसद में आपने उस शख्स के नाम के अदद, उसकी माँ के नाम की वैल्यू और मकसद और बिस्मिल्लाह के अदद, बिस्मिल्लाह में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अदद, तकबीर के अदद जो हम जानवर को ज़बह करते वक्त पढ़ते हैं, किसी भी हलाल जानवर को ज़बह करते वक्त जो हम तकबीर बुलंद करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आपने इसके अदद को आपने शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ अदद नहीं बताऊँगा, जो माहिर लोग हैं वो ख़ुद से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर ज़बह करने में जो इस्तेमाल होती है, जिससे जानवर को ज़बह किया जाता है, आपने इस तकबीर को पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को आपने पढ़ के इसके अदद निकालने हैं। इसी के आदाद के अंदर आपने दुश्मन और दुश्मन की माँ के नाम के अदद निकालने हैं और मकसद के अदद निकाल के इन तमाम को जमा कर लेना है। अगर दुश्मन मर्द हो तो नक्श मुरब्बा पर करें, अगर दुश्मन औरत हो तो नक्श मुसल्लस पर करें और तमाम कवायद व ज़वाबित को अपने जहन में रखें। आपने 2 नक्श पर करने हैं, एक नक्श खाकी चाल से पर करना है और दूसरा नक्श आपने आतशी चाल से पर करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपने पहले रफ़ अमल करके ये अमाल आपने तैयार कर लेने हैं। ये अमाल आपने तैयार करके आपने क्या करना है कि जैसे वह वक्त शुरू हो, नफल, सदका, गैब और रिजाल को सलाम, दुआ, इस्तिखारा और सदका, नफल, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा और हसार सारा मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले आपने बाहिनी रान के ऊपर रख के काली स्याही से, और उस स्याही में आपने थोड़ा सा नमक, धतूरे का पानी, नीम के पत्तों का पानी, आग का दूध थोड़ा सा उसमें मिला देना है और वीरान जगह की मट्टी 1 चुटकी या मकतूल के कब्र की मट्टी 1 चुटकी उस स्याही में मिला के उसको हिलाना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने उससे एक नक्श तश्कील देना है, आपने एक नक्श बनाना है। जब आपने उस नक्श को बनाना है तो आपने उस नक्श को कागज़ के ऊपर बना लेना है। बनाने के बाद आपने उस नक्श के 3 तरफ
ऊपर वाली साइड पे भी 3 बार लिखना है बिस्मिल्लाह अल्लाह, एक बार लिखना है सॉरी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। राइट साइड पे भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेफ्ट साइड पे भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और नीचे आपने मकसद लिखना है, नीचे आपने मकसद में लिखना है या इलाही बेहुरमते इस्मे आज़म बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर फलां बिन फलां को ये हो जाए, आगे मकसद लिख देना है, ठीक है। नीचे अल अजल साता अलवाहन अल-यौमन, ये आपने तहरीर बना लेनी है, एक को आतशी चाल से और एक को खाकी चाल से आपने नक्श को पुर कर लेना है। जब आपने ये 2 नक्श बना लेने हैं, दोनों नक्शों को बना के इनके ऊपर जो है ना एक नक्श को आप खुला छोड़ दें और कोशिश करें कि एक नक्श को आप जो है ना ज़ुहल और मरीख की 2 धातें को मिक्स कर लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ज़ुहल और मरीख की जो धातें हैं वो आमिलीन कामिलीन को पता है कि वो कौन सी मेटल हैं। ज़ुहल की मेटल ले लें और मरीख की मेटल ले लें, इन दोनों को आपस में आपने पिघला कर पानी बना के इनकी वट्टी बनानी है और फिर उसकी एक पतरा तैयार करवाना है। पतरा इतना हो कि 3 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक पतली तख्ती बनवानी है और उसी के ऊपर इस नक्श को ख़ास साथ में कुंदा करवाना है आतशी चाल से। और एक नक्श को सिंपल कागज़ के ऊपर बना लेना है या काले कपड़े के ऊपर, सीधा वीरान कोई पुराना काला कपड़ा हो, अगर दुश्मन का कपड़ा मिल जाए, बनियान मिल जाए तो उसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं। आपने अब नक्श बना लिए, एक आपने लोह बनवानी है, लोहे मकहूरी दुश्मन क्या है और इसके बनाने का तरीकाकार ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक लोह बना लेनी है, लोहे मकहूरी दुश्मन क्या है, ठीक है। तो यही वो लोह है जिसमें आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के आदाद, दुश्मन के नाम के आदाद, दुश्मन की माँ के नाम के आदाद, मकसद के आदाद, इसको जमा करना है। जमा करके फिर आपने मुरब्बा नक्श आतशी चाल से पुर करना है और उस ख़ास वक्त में इसकी कुंदाकारी करवा लेनी है। कुंदाकारी करवाने के बाद आपने इसको ज़ुहल और मरीख के बखूरात देने हैं, उसकी धुनी देनी है। धुनी देने के बाद आपने ये जो लोह है इस लोह को अपने सामने रख लेना है और उस कागजी नक्श को भी आपने सामने रख लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और इस दौरान दुश्मन का तसव्वुर कामिल रखना है कि अल्लाह मेरे इस दुश्मन पर अपना गैज़ और गज़ब नाजिल फरमा, अपने गैज़ और गज़ब से इसको ज़बह कर दे, मेरी इससे जान छुड़वा दे, या ये मेरे ऊपर जो भी आपका मकसद हो उसको जहन में रखना है। दुश्मन के तस्वीर को दिमाग में लाते हुए इस वजीफ़े को आपने इंतहाई गुस्से के साथ मुंह के अंदर नमक या काली मिर्च या फिर नीम के पत्ते रख के आपने उल्टी साइड पर तस्बीह काली के साथ हफ्ते के दिन कमर दर अक़रब में आपने इसको पढ़ना है। और इन तमाम क़वाइद व ज़वाबित का आपने भरपूर अंदाज में ख्याल रखना है। और आपने तस्बीह पढ़ते वक्त ये कोशिश करनी है, आपने अपनी तरफ से तस्बीह को पढ़ते वक्त ये कोशिश करनी है कि दाने जो हैं तस्बीह के वो आपने अपनी तरफ नहीं खींचने, बल्कि दाने आपने परे धकेलने हैं। तस्बीह को नीचे की तरफ पढ़ना है। अब मेरे पास कोई तस्बीह है नहीं, वरना मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका सिखाता। यानी दाने को, एक तो है ना दाने को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं और एक ये है कि दाने को दूसरी तरफ धकेल रहे हैं। अपनी तरफ नहीं खींचना, दूसरी तरफ धकेलना है, ठीक है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक तस्बीह आपने पढ़नी है, इसके अव्वल आखिर दरूद नहीं पढ़ना। फिर कह रहा हूँ, इसके अव्वल आखिर दरूद नहीं पढ़ना। आपने अव्वल आखिर एक तस्बीह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको 786 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद फिर एक तस्बीह तकबीर की पढ़नी है और पढ़ के उस तावीज़ के ऊपर दम कर देना है। तावीज़ के ऊपर दम करके उस धाती पतरी लोह के ऊपर भी आपने दम कर देना है और फिर आपने दुश्मन के लिए अल्लाह के हुजूर बद्दुआ करनी है। उसके बाद आप वहाँ से उठ के आ जाएं। अब ये अमल आपने मुसलसल 11 रोज़ तक करना है, डेली, रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, इसको फिर एक बार आपने धुनी देनी है, आग के पत्तों की धुनी देनी है, लोह को भी तावीज़ को भी धुनी देने के बाद इसको बंद करना है। बंद करके इसको काले कपड़े में लपेट के काला धागा लगाना है, ऊपर काला धागा लगा के इसको किसी भी वीरान जगह के अंदर जाकर, किसी वीरान मस्जिद में, वीरान खंडर में, वीरान मकान में, कोई ऐसी जगह जो बर्बाद हो चुकी हो, उजड़ चुकी हो,
वहाँ जाकर इसको आपने खाकी चाल वाले नक्श को, जिसको आपने कागज़ पर लिखा था, उसको जाकर आपने ज़मीन में दफन कर देना है। उसके बाद चाहें तो इसमें दुश्मन के पाँव की मट्टी, दुश्मन के घर में भी इसको दफन कर सकते हैं, अगर आसान हो। दुश्मन की राह गुज़र में भी इसको दफन किया जा सकता है। ये बहुत ही सख्त अमल है। इसको करने से पहले फिर कह रहा हूँ, ऐसे किसी भी शख्स पर आप अमल करेंगे, क़यामत के दिन आप खुद गुनाहगार होंगे और इसकी रज्जत का आप खुद शिकार होंगे, और वो रज्जत आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, और मेरी तरफ से भी आपको इस तरह के अमल की कोई इजाज़त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं इस चीज़ को बता तो रहा हूँ, लेकिन ये अमाल शर में से है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई शख्स नाहक तंग और परेशान कर रहा है। कोई शख्स गरीब है, नादार है, तो वो ये शख्स करे, उसको मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है, लेकिन वो शख्स भी पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पर आमिल होना चाहिए। ठीक हो गया। आपने उसके बाद जब 11 दिन गुजर जाएं, अब आपने जो आपकी दाती पतरी लोहे मकहूरी दुश्मन तैयार हुई है, उसको आपने रोज़ाना 21 मिनट तक गरम इस्त्री के नीचे रखना है। नीचे लकड़ी रखनी है, ऊपर लोह रखनी है, और उस लोह के ऊपर आपने इस्त्री रखनी है। रोज़ाना 21 मिनट उसको इस्त्री से गरम करना है। ठीक है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका दुश्मन अल्लाह की तरफ से उस पर अज़ाब मुसल्लत होगा, वो तंग और परेशान हो जाएगा, तरह तरह अमराज का शिकार हो जाएगा, और डैश 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 डैश। ठीक है। जब आपका दुश्मन अपने उसमें हो जाए, फिर आपने उस लोह को इस्त्री के नीचे गर्म नहीं करना, उस लोह को पानी में फेंक देना है। फिर आपने कोई ना कोई सदका करना है, दावत करनी है, अल्लाह के नाम की नियाज देनी है, और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। ठीक है। अगर कोई शख्स आपको तंग और परेशान करता है तो फिर ही आप इस तरह के अमाल कीजिए। अगर कोई शख्स आपको कोई ऐसे छोटी मोटी बात हो गई है, तो ये नहीं है कि आप उठ के उस पर अमल करने बैठ जाएं। मैंने इसमें बहुत सारे सीगे राज में रख दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब भी मैंने इसमें छुपा ली हैं, नहीं आम की। आमिलीन कामिलीन को पता है कि वो चीज़ें क्या हैं, मैंने खुद बता दिया है। हर अक्ल व फ़हम से भरपूर शख्स को उसकी समझ है कि मैं क्या कह रहा हूँ, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने छुपा ली हैं। ठीक है। वो मैंने आम नहीं की, ताकि मखलूक खुदा को इससे ज़रर ना पहुँचे। तो जो सालिक होता है, आरिफ होता है, वो सुई धागे का काम करता है, कैंची का काम नहीं करता। तो मेरी तरफ से इस अमाल की सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है जो बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात दे चुके हैं, जो हमारे फैज़ान बिस्मिल्लाह में बाकायदा तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा किसी को भी इस तरह के अमाल की इजाज़त हरगिज़ 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 नहीं है। आपको अलग से इसकी इजाज़त मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हमारी इसी नशस्त के मुताल्लिक़ या किसी भी और नशस्त के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है, तो आप वो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ान में हम 4 ऐसी नशिस्तें करेंगे जिसमें आपके हर सवाल के जवाब को शामिल किया जाएगा और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। तो आप हमसे कोई भी रूहानी मशावरत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में, अच्छा कुछ लोग सवाल मुझसे करते हैं तो ऐसी इंग्लिश यूज़ करते हैं जो मुझे खुद ही समझ नहीं आती कि लिखा क्या है। तो खुदारा स्पेलिंग सही लिखा करें, बोल कर मैसेज ना लिखा करें। आप बोल कुछ रहे होते हैं, वो आगे टाइप कुछ हो रहा होता है, और फिर हमारे लिए मसला बनता है। हम इस तरह के सवाल को नहीं शामिल करते। आप सवाल को करें, और उसमें अपनी वालदा और अपना नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सवाल करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जो कि कुरानी तौर पर, शरई तौर पर हलाल और जायज़ होगा। तो मैंने सारी चीज़ें आज की नशिस्त में कंप्लीट कर दी हैं। सारी चीज़ों को तकरीबन मैंने समझा दिया है, हर चीज़ आपको मैंने बता दी है। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।